So class, very good morning to all, and as you know we are discussing the chapter amines, and in the chapters amines we completed the introductory part of amines, the classification of amines and the physical properties, not so much there but little bit amount, and after that you have the preparation, and right now we are discussing about the chemical properties of amine, and the first chemical properties of amine, that means the basic character of amines is completed. Clear? And you check that in basic character of amines we also discussed there the basicity of ammonia and amines. Okay. That is 1 degree, 2nd degree and 3rd degree amines basicity with respect to ammonia. Okay. In the gaseous phase, in the liquid phase. So today we discuss some further chemical properties of amine here, like you have the alkylation, acylation, and then you have the carbonyl amine test. Clear? And the next you have the distinguish in between the 1 degree, 2nd degree and 3rd degree amines. Clear? And this is your syllabus of amines chapter, because we all know that the diazoenium salts, that means the nitrogen containing compounds are removed by the CBSE. So let us start with the first reaction called alkylation. Start with the thoughts. Thinking is hard work. Obviously, it's very hard work here. So now start with alkylation. That means what is the alkylation reaction? Alkylation or reaction. Now see that what is the alkylation? Okay. Yeah, you can say in the simple manner, when your amines, when your a particular compounds is react with the alkyl halide, and this reaction is undergo called alkylation reaction. The same reaction here, that means this reaction we are taking here 3 or 4 times here. So you can say that suppose you have the amines, 1 degree amine you have NH2 is going under with the reaction of CS3 CS2 Br. This is your reactant here, that means CS3 CS2 NH2. Okay. Ethyl amine you have, and you have the ethyl bromide. Yeah. The name of this, and student, one more thing here to make the habit to write the IUPAC names of these compounds. Okay. In your fair copy, always make a habit, because it will help you in the board examination that what is the actual name, what is the common name, what is the IUPAC name of this reactant. I am telling here, that means suppose you have the CS3 CS2, it is ethyl and this is your amine, so you can say that this is ethyl amine, and same here CS3 CS2 met at ethyl is here, and the bromide you have, so you have the ethyl bromide. So what the reaction you are saying that there is a 2 molecule of ethyl, so these 2 molecules will combine in this manner, that means you have CS3 CS2 whole twice dot NH. Clear? So it will form diethyl amine, because you have diethyl CS3 CS2 the whole twice and NH you have, so you have the diethyl amine. The same things, suppose this reaction is again further reacted with the ethyl bromide. ठीक है, कुछ रिएक्शन याद आ रहा है? फर्स्ट चैप्टर में किया था हम लोगों ने विद द हेलो एल्कीन्स. ठीक है, वहां हमने कहा था ब्रोमिनेशन या क्लोरिनेशन, आपको पढ़ा था रिएक्शन के अंदर सिंपल क्लोरिनेशन. वहां पर आपने कहा था फर्स्ट रिएजेंट ये था आपके पास CS2 प्लस Cl2, हीट लिया था आपने. ठीक है, तो फर्स्ट प्रोडक्ट क्या मिला आपको? CS3Cl. ठीक है, फिर अगेन आपने कहा सर टेकिंग Cl2 इट विल फॉर्म CS3Cl2. ठीक है, CS2Cl2. ठीक है, तो ऐसे कुछ आपको प्रोडक्ट मिलते रहे थे, और कब तक आपने रिएक्शन करवाया था? जब तक आपको नहीं मिला CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड. ठीक है, ये आपका अनकंट्रोल्ड क्लोरिनेशन वहां कहा था आप लोगों ने. ठीक है, दिस इज योर अनकंट्रोल्ड. ठीक है, अनकंट्रोल्ड का मीन्स क्या होगा कि हम इसको स्टॉप नहीं कर पा रहे इन बिटवीन. ठीक है, और स्टॉप कैसे कर रहे थे? मैंने वहां पर कहा था व्हेन यू विल टेक द वन इक्विवेलेंट क्लोरीन, वन इक्विवेलेंट क्लोरीन. ठीक है, जब आपके पास एक ही क्लोरीन रिएक्शन के अंदर होगा, सो हाउ विल दिस रिएक्शन विल प्रोसीड आफ्टर फॉर्मिंग वन प्रोडक्ट?
ये आफ्टर फॉर्मिंग मिथाइल क्लोराइड नहीं जाएगा ना, सो दिस इज कॉल्ड द कंट्रोल्ड एंड द अनकंट्रोल्ड क्लोरिनेशन या फिर हेलोजिनेशन। इट इज क्लियर। सो ये बात तो पुरानी थी आपके पास। नाउ कम्स today's topic, that will be the CH3 CH2 whole twice NH. Suppose this reactant is again further reacted with this ethyl bromide. So what will happen? So see that you have CH3 CH2 Br, ठीक है। फिर से देखिए, दो ये थे, एक ही आ गया, क्या हो गया, 3 आ गया, ट्राई आएगा। सो द रिएक्शन इज प्रोसीड CH3 CH2 होल थ्राइस। अब क्या आ जाएगा, NH आपके पास था, सो नाउ इट इज फॉर्म N, नाउ दिस इज फॉर्म N, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ट्राई इथाइल एमाइड, ठीक है। अब देखिए व्हाट विल हैपन इफ अगेन दिस CH3 CH2 Br इज रिएक्टेड, ठीक। तो आपको क्या मिलेगा, एक अमोनियम क्लोराइड या अमोनियम ब्रोमाइड जैसा कुछ प्रोडक्ट मिलेगा, या कुछ सॉल्ट का फॉर्मेशन करेंगे आप लोग, ठीक है। कुछ ऐसी कंडीशन लगी ना, बिकॉज एन को तो रिप्लेस नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। अगर चाहेंगे तो, बिकॉज हमें क्या होगा, हमें 1 डिग्री टू अमोनियम क्लोराइड या सॉल्ट का फॉर्मेशन जहां करना होगा, वहां पर हम लोग दिस एल्काइलेशन रिएक्शन का यूज करने वाले हैं, ठीक है। कैसे करेंगे देखिए, बहुत इजी। CH3 CH2 Br अगेन सेम रिएक्शन, तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 होल 4 एंड N पॉजिटिव Br नेगेटिव, ठीक है। क्योंकि सॉल्ट का फॉर्मेशन होने वाला है यहाँ पर, बिल्कुल भी सॉल्ट बनने वाला है। सॉल्ट कैसे बन जाएगा, देखिए आई एम राइटिंग हियर CH3 CH2 होल 4 N पॉजिटिव Br नेगेटिव, यही कुछ बनेगा आपके पास प्रोडक्ट। I'm writing reagent here CH3 CH2 Br. So this is your product CH3 CH2 whole 4 and positive Br negative and this is your salt, ठीक है। तो मेन थिंग्स क्या हुआ एल्काइलेशन रिएक्शन में, आपने किसी अमाइंस का, जो आपके पास 1 डिग्री अमाइंस था, उस 1 डिग्री अमाइंस को आपने रिएक्ट करवाया विद दी इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। तो प्रोडक्ट यू हैव डाइथाइल अमाइंस, देन यू हैव सेकंड टेट्राइथाइल ब्रोमाइड, sorry tetraethyl amine, and then you have now a salt formation, so this is the main importance of this reaction, to convert 1 degree amines into the salt. It is clear? So this is the reaction, the simple, it is clear now. So see the second reaction, you have the acylation reaction, ठीक है। The same reaction is that the acyl chloride वहां पर होगा, कुछ अमाइड का फॉर्मेशन करेगा, बाकी बातें हम पढ़ के आए हैं पिछले क्लास से या पिछले चैप्टर से। सो देखिए, आई एम टेलिंग यू व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस रिएक्शन। सो यू आर सीइंग दैट दिस 1 डिग्री अमाइंस इज टोटली कन्वर्टेड इनटू क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, ठीक है। कुछ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट आपको मिल रहा है, तो ये आपका रिएक्शन वर्क करेगा इन दी कन्वर्जन रिएक्शन, ठीक है। अगर कन्वर्जन रिएक्शन के अंदर आपको 1 डिग्री अमाइन को कहां जाना होगा, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट के अंदर जाना होगा, सो वी विल यूज दिस एल्काइलेशन रिएक्शन देयर, ठीक है। क्या हो जाएगा, टेट्राइथाइल अमोनियम ब्रोमाइड यू हैव, ठीक है। तो ये कुछ सॉल्ट का फॉर्मेशन था आपके पास, इजी रिएक्शन है, ठीक है। हाँ, एंड वन मोर थिंग इज हियर, द नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हॉफमैन एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन, ठीक है। क्या था आपके पास, 1 डिग्री अमाइंस टू कहां जा रहे हैं आप लोग, 1 डिग्री अमाइंस टू जा रहे हैं आप क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बना रहे हैं आपका अमोनियम सॉल्ट। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हॉफमैन एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन, ठीक है। तो नेम भी याद रखें आप लोग, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड द हॉफमैन एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन, ठीक है। कई बार क्या पता मे बी नेम रिएक्शन से पूछ ले वो, व्हाट इज द हॉफमैन एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन रिएक्शन, और एक हॉफमैन ऑब्जेक्टिव आपने पिछले क्लास में पढ़ी है, पिछले चैप्टर्स में, सो बी केयरफुल। नाउ सी दैट द सेकंड रिएक्शन यू हैव एसाइलेशन रिएक्शन, एसाइलेशन रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए एसाइलेशन रिएक्शन के अंदर होता क्या है आपका, सिंपल,
आप क्या यूज करते हैं, कोई एसाइल क्लोराइड यूज कर रहे हैं आप लोग, या एसाइल एनहाइड्राइड यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब एसाइलेशन रिएक्शन जो देगा बेटा, वो कौन देगा, वो दोनों देंगे आपको, 1 डिग्री अमाइंस में देगा, 1 डिग्री एंड 2nd डिग्री अमाइंस बोथ, ठीक है। एसाइलेशन रिएक्शन देगा आपको 1 डिग्री एंड 2nd डिग्री बोथ अमाइन देगा, ठीक है। होगा क्या फिर एसाइलेशन में आपके पास प्रीडीन भी रिएक्शन देगा आपको, और 1 डिग्री अमाइन जो एलिफेटिक होगा वो भी, और एरोमेटिक दोनों देगा, ठीक। अब एसाइलेशन के अंदर आप करते क्या थे, सिंपल, आपने कहा हम कोई सर एसाइल क्लोराइड का यूज कर रहे हैं, एसाइल क्लोराइड और एसाइल एनहाइड्राइड, ठीक है, इसका यूज भी कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। क्या करेंगे, किसका फॉर्मेशन होगा, एमाइड का फॉर्मेशन, किसका फॉर्मेशन होगा, एमाइड का फॉर्मेशन, ठीक है। ये कुछ बनेगा विद द रिलीजिंग ऑफ HCl मिलेगा आपको, ठीक है। तो देखें क्या होता है, देखिए ऐसा आप फर्स्ट क्या लिया, CH3 CH2 NH2 प्लस सपोज यू हैव CH3 C1O Cl, ठीक है। ये कुछ ऐसी कंडीशन था नाइट्रोजन का, लोन पेयर था आपके पास, ठीक है। अब लोन पेयर है तो डायरेक्टली किसको अटैक करेगा, विद दिस कार्बन, ठीक है। इसको अटैक किया तो कार्बन को अटैक किया तो डबल बॉन्ड क्या होगा आपका, शिफ्ट हो जाएगा बेटा, ठीक है। ये शिफ्ट हुआ, जैसे ये शिफ्ट हुआ तो फिर रिएक्शन क्या मिलेगा आपको, देखिए बड़ी रिएक्शन ही लेते हैं हम लोग, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल समझ लेते हैं कि मैकेनिज्म कैसे वर्क करेगा इसका, ठीक है। सपोज दिस इज योर सिंपल R एंड अगेन दिस इज योर R', ठीक है। समझ लेते हैं पहले कैसे वर्क करना है। देखिए हुआ क्या आपके पास, R NH2, ठीक है, लोन पेयर था आपके पास, तो आपने क्या कहा कि एक H तो आपका ऐसे लगा देंगे, H, ठीक है। क्या जोड़ दिया आपने, ये पार्ट जोड़ दिया इस पे, तो क्या बनेगा आपका R' CO नेगेटिव Cl, ऐसा कुछ होगा। अब देखिए जो ड्यू टू लोन पेयर इसने अपना क्या क्या इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, सो इट विल फील द पॉजिटिव चार्ज, कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये बन जाएगा कंडीशन आपके पास। और जब ये कंडीशन आपके पास बनेगा तब क्या हो जाएगा, ये H क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देगा एंड इजिली रिमूव हो जाएगा फ्रॉम दिस रिएक्शन। और जैसे रिमूव हो जाएगा तो इसका साथ कौन देगा, इसका साथ देगा आपका Cl। Cl भी क्या करेगा, अपना बॉन्ड क्लीवेज करेगा, बॉन्ड ब्रेक करेगा, और इन द फॉर्म ऑफ HCl क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और रिमेनिंग पार्ट आपका सेम रह जाएगा। दैट मीन यू हैव द R NH R' C11O, ठीक है। या इसको इजिली ऐसे लिख लीजिए, C11O R', ये रिएक्शन होगा क्योंकि एक बॉन्ड ब्रेक हुआ है, ठीक है। 1 2 3, ठीक है। ये बॉन्ड ब्रेक था आपके पास, तो 1 2 दिस बॉन्ड एंड कम्स इन दिस मैनर RNH C11O R', ठीक है। तो ये आपको क्या मिला, प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है, जिसे बोलते हैं हम लोग एमाइड, ठीक है। या सिंपली यहां पर होगा एंड सब्स्टिट्यूटेड अमाइंस का फॉर्मेशन करेगा, सॉरी एमाइड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक हो गया। RNH C11O R', क्या निकल गया आपका HCl बाहर हो गया। तो ये है आपके पास एसाइलेशन रिएक्शन, दैट मीन अमाइन प्लस एसाइल क्लोराइड लिया आप लोगों ने यहाँ पे, तो सिंपल विल फॉर्म द अमाइड फॉर्मेशन। सो बेटा बात करने वाला हम लोग एसाइलेशन रिएक्शन का, ठीक है। एल्काइलेशन इज कंप्लीटेड, ठीक है। तो बात कर लेते हैं एसाइलेशन रिएक्शन का। तो व्हाट इज द एसाइलेशन रिएक्शन, नाउ सी दैट एसाइलेशन, दैट मीन व्हाट इज द सेम, द 1 डिग्री एंड 2nd डिग्री बोथ, 1 डिग्री एंड 2nd डिग्री बोथ amines are react with the acyl chloride, किसके साथ रिएक्शन करवाएगा, एसाइल क्लोराइड के साथ। और क्या होगा, एसिड एनहाइड्राइड से रिएक्शन करवाएगा, ईस्टर्स से रिएक्शन करवाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का मीन्स क्या होगा कि जो ज्यादा बेसिक होगा एज कंपेयर टू 1 डिग्री एंड 2nd डिग्री अमाइंस के,
ठीक है, किससे रिएक्शन करवाएंगे आप लोग? 1 डिग्री सेकंड डिग्री बोथ अमाइन आर रिएक्टेड विद द एसाइल क्लोराइड, द एसिड एनहाइड्राइड एंड द ईस्टर्स आल्सो, ठीक है, एज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लाइक यू हैव द मोर बेसिक सब्सटेंसेस एज कंपेयर टू 1 डिग्री एंड सेकंड डिग्री अमाइंस, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और क्या बन जाएगा आपका फिर? एल्काइलेशन और रिएक्शन मिलेगा। क्या बनेगा? एमाइड का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन करेंगे आप लोग? एमाइड का फॉर्मेशन करेंगे। हियर इज एमाइड फॉर्मेशन इज टेक प्लेस, ठीक है। अब देखिए मैकेनिज्म आपको पता है पहले से कैसे होता है, ठीक है। देखिए आपके पास क्या है? RNS2 1 डिग्री अमाइन, ठीक है। कंडीशन एसाइल क्लोराइड का C-O R-Cl, ये आपका एसाइल क्लोराइड जाएगा RCOCl, ठीक है। क्या करेगा भैया? लोन पेयर कार्बन देख के ही अटैक करना स्टार्ट कर देगा। सो इट विल हैपन इन दिस मैनर। R N आपके पास था, H है, H आपके पास है ऐसा, ठीक है। क्या जोड़ रहे हैं? ये जोड़ रहे हैं आप लोग CCl R-. जैसे अगर लोन पेयर आएगा कार्बन पे तो कार्बन क्या करेगा? डबल बॉन्ड शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स द ऑक्सीजन, सो इट विल फॉर्म O नेगेटिव, ठीक है। एंड आफ्टर डोनेटिंग द 1 लोन पेयर it will feel the positive and, ठीक है। So what happened after happening this condition? You check that this H positive is after donate the electron to N and this Cl bond will be clears out and the reaction is formed R NH C double bond O R dash. This is your R dash. So this is from your amide, ठीक है। चाहे तो अच्छे से लिख लीजिए R NH CO R dash, ठीक है। ये भी अच्छा फॉर्मूला लगता है आप लोगों को, तो दिस इज O and R dash. So this is your amide, ठीक है। तो check out the reaction and do this with some example. Now check out, it is clear. So this is the reaction of alkylation reaction 1 डिग्री सेकंड डिग्री बोथ एसाइल क्लोराइड रिएक्ट कराएगा, ठीक है। साथ में एसिड एनहाइड्राइड भी होगा, आपके साथ ईस्टर्स भी होगा। इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस मैंने कहा था, तो यू कैन राइट हियर आल्सो बेस, ठीक है। और बेस कौन सा लेंगे आप? वो बेस वो यूज करेंगे जो इन 1 डिग्री सेकंड डिग्री से दोनों से क्या हो आपका ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस हो, ठीक है। नाउ सी दैट व्हाट हैपन व्हेन दिस रिएक्शन इज गोज विद एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। क्या रिएक्शन देगा आपको? ठीक है, सपोज एसिड एनहाइड्राइड आपके पास है, ठीक है। एसिड एनहाइड्राइड आपके पास है तो आपने कहा सर वी आर टेकिंग हियर द pyridine, ठीक है। pyridine ले लिया आपने NH2 प्लस कोई एसिड एनहाइड्राइड लिया आपने CH3 C double bond O O C double bond O CH3, दिस इज योर एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। यही बनेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम, सपोज आई एम टेकिंग द NaOH, ठीक है। तो क्या बन जाएगा रिएक्शन भाई? रिएक्शन सिंपल कुछ निकल जाएगा, ठीक है। NH हो जाएगा, एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे विद CH3CO या CO CH3 जुड़ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द एमाइड, ठीक है। ये क्या बनेगा? आपका एमाइड बनेगा। और जो रिमेनिंग पार्ट होगा CH3 COOH वो बनाएगा आपका एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। दैट मीन हियर यू हैव इन दिस मैनर ANH, here C double bond O CH3, ठीक है। It is clear, C double bond O CH3 plus the remaining part, that means this part is further CH3 C double bond O OH. So this is your acylation reaction in the presence of the strong basic medium, ठीक है। So ये आपका उसे रिएक्शन था, it is clear, इसमें कोई डाउट तो नहीं है दिस एल्काइलेशन रिएक्शन के अंदर, ठीक है। काफी अच्छा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कुछ नहीं करना, एमाइड का फॉर्मेशन आपने किया तो चेक आउट व्हाट इज द एमाइड फॉर्मेशन हियर, ठीक है। और कैसे वर्क करेगा, कैसे टूटेगा, ठीक है। सो इन सेम रिएक्शन एल्काइलेशन के अंदर ही एक रिएक्शन का डिस्कस फिर कर लेते हैं, ठीक है। उस रिएक्शन को टिपिकली हम लोग बोलते हैं द बेंजोलेशन रिएक्शन, बेंजोलेशन रिएक्शन, बेंजोलाइजेशन या बेंजोलेशन रिएक्शन। बेंजोलेशन रिएक्शन का सिंपल मीन्स होगा द बेंजाइल क्लोराइड का यूज करने वाले हम लोग, ठीक है। और बेंजाइल क्लोराइड का यूज में क्या होगा? C6H5 C double bond O का क्या कराएंगे आप? इंट्रोडक्शन कराएंगे, इसको आप इंट्रोड्यूस कराएंगे
विथ एमीन के साथ, ठीक है। और एमीन कैसा होगा आपके पास, एरोमेटिक एमीन होगा, बिकॉज आप देख रहे हैं बेंजोलाइजेशन रिएक्शन यूज कर रहे हैं, ठीक है, बेंजाइल क्लोराइड यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर क्या हो सकता है, रिएक्शन इंट्रोड्यूस करेंगे इन द सेम रिएक्शन कंडीशन जो आपको कहा था इन द बेसिक मीडियम। सपोज यू हैव NH2 प्लस यू हैव हियर C6H5 C11O Cl benzoyl chloride you have, ठीक है। And second things you have in the presence of strong basic medium, so you will check out, yeah, you will see that you have this kind of production, you have the NH C11O C6H5 plus, see that the NaCl will be remove out, या no need to remove, ठीक है। ये रिएक्शन मिक्सचर के अंदर घूमता रहेगा एंड द फर्दर रिएक्शन को इनिशिएट करेगा, प्रोसीड करेगा, ठीक है। ये कुछ आपके पास हुआ, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द बेंजोलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। एंड इजी रिएक्शन है, C6H5 C11O का इंट्रोड्यूस करवाना होता है आप लोगों ने, ठीक है, एमाइंस के अंदर, तो उसको बोलते हैं बेंजोलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। एंड दिस इज द प्रोडक्ट NH C11O C6H5, ठीक है। सो एनी डाउट इज देयर इन दिस रिएक्शन, ठीक है, कुछ नहीं करना, सिंपल रिएक्शन है आपके पास, ठीक है। तो ये कुछ रिएक्शन थे आपके पास बेस्ड ऑन द एसाइलेशन एंड द एल्काइलेशन, ठीक है। देन आफ्टर दिस रिएक्शन वी विल डिस्कस अबाउट the main important test of this chapter called the कार्बिल एमाइन टेस्ट, ठीक है। अब कार्बिल एमाइन टेस्ट के अंदर क्या होगा, एक कार्बिल एमाइन आपके पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, जो क्या होगा, बहुत ज्यादा स्मेली होगा, ठीक है, स्मेली होगा। और वही उस स्मेल का, या ड्यू टू दिस स्मेल हम क्या करेंगे, उस पहले टेस्ट यूज करने वाले हैं टू डिस्टिंग्विश इन बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइंस का, ठीक है। कैसे रिएक्शन करेगा, कैसे क्या करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कॉपी कर लें आप लोग, देन चेक आउट द कार्बोलामाइन रिएक्शन, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट कार्बोलामाइन रिएक्शन, या यू कैन से द कार्बोलामाइन टेस्ट, या कैसे है आइसोसाइनाइड टेस्ट, ठीक है। बहुत सारे नेम इसके पास हैं, आइसोसाइनाइड भी इसको कह सकते हैं हम लोग, आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। आइसोसाइनाइड टेस्ट के हैं या फिर कार्बोलामाइन टेस्ट के हैं, ठीक है, या कार्बोलामाइन रिएक्शन के हैं, ठीक है। एक आइसोसाइनाइड का प्रोडक्शन होगा इसमें, NC जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो वो कैसे होगा, देखिए, जब आपका 1 डिग्री एमाइंस क्या करेगा, 1 डिग्री एमाइंस आप रिएक्शन करवाएंगे विद द क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ एथेनॉलिक KOH, ठीक है। अब एथेनॉलिक KOH आपके पास है, ठीक है। तो यह क्या फॉर्म करेगा, आइसो साइनाइड का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा, आइसो साइनाइड का फॉर्मेशन करेगा, या जिसको बोलते हैं हम लोग कार्बिल एमाइन भी इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो आइसोसाइनाइड यह क्या बनाएगा, कार्बल एमाइन बनाएगा, जिसको बोलते हैं हम लोग कार्बिल एमीन टेस्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए कार्बिल एमीन टेस्ट के अंदर था क्या, आपने कहा केवल मैं कह रहा हूं 1 डिग्री अमाइन से रिएक्शन करवा रहा है विद द क्लोरोफॉर्म एंड द एथेनॉलिक KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सो प्रोडक्ट इज यू हैव द आइसोसाइनाइड, ठीक है। आइसोसाइनाइड देगा आपको, और क्या देगा आपको, कार्बिल एमाइन देगा, ठीक है। और इसी आइसोसाइनाइड को या कार्बिल एमाइन को हम लोग बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट या कार्बिल एमाइन टेस्ट, ठीक है। अब इस रिएक्शन में क्या होगा, देखिए सेम थिंग्स, एक बड़ा स्मॉल सा फॉल सा आपको स्मेल मिलेगा, ठीक है। एक आइसोसाइनाइड का जो स्मेल होता है बड़ा डिसऑर्डर रिएक्शन कह सकते हैं, डिसऑर्डर स्मेल उसके अंदर आती है, ठीक है। वही एक स्मेल और या ऑर्डर बेस्ड रिएक्शन आपके पास है, जिससे आप 1 डिग्री 2nd डिग्री और 3rd डिग्री एमाइंस में डिफरेंशिएट करवा सकते हैं या डिस्टिंग्विश करवा सकते हैं। और रिमेंबर दैट ओनली 1 डिग्री एमाइंस विल शो दिस कार्बोलामाइन रिएक्शन या कार्बोलामाइन टेस्ट, एंड 2nd डिग्री एंड 3rd डिग्री आर नॉट गिव दिस कार्बोलामाइन टेस्ट, ठीक है। तो 2nd डिग्री और 3rd डिग्री नहीं देगा, कौन देगा, केवल 1 डिग्री देगा। तो यू हैव दिस जनरल रिएक्शन RNH2, ठीक है, प्लस यू हैव
दिस CH Cl3 प्लस यू हैव द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कैसा है भैया? एथेनॉलिक आपके पास है, ठीक है। तो रिएक्शन करवाना है, क्या बनाएगा? आइसोसाइनाइड, दैट मीन RNC बनाएगा, ठीक है। प्लस आपको मिल जाएगा एक KCl मिल जाएगा, प्लस एक रिएक्शन मिल जाएगा वो H2O। नाउ दिस इज योर वर्क टू बैलेंस दिस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। इस केमिकल इक्वेशन को आप लोग बैलेंस करेंगे कि बैलेंस करने के बाद रिएक्शन कैसा लिखेगा। एंड रिमेंबर दैट कोई भी रिएक्शन आप लोग लिखते हैं, ठीक है, एग्जामिनेशन में, तो इट शुड बी बैलेंस, ठीक है, हमें बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस RNS2 जो 1 डिग्री था वो कन्वर्ट हो रहा है आपका RNC। RNC क्या है आपके पास? आइसोसाइनाइड आपके पास है, ठीक है। क्या है आपके पास? आइसोसाइनाइड आपके पास है, ठीक है। ड्यू टू दिस फॉर्मिंग दिस आइसोसाइनाइड आपके रिएक्शन के अंदर क्या आएगा? एक फॉल स्मेल आएगा, एक ऑर्डर बेस्ड रिएक्शन आपके पास है, ठीक है। और यही जो ऑर्डर बेस्ड रिएक्शन होती है या जो कलर चेंजेस रिएक्शन होती हैं, ठीक है, इन्हीं को हम लोग टेस्ट में इंक्लूड करते हैं। बिकॉज वी डोंट नो दैट कि क्या RNC बन रहा है, क्या RCN बन रहा है, ठीक है, क्योंकि दे ऑल लुक लाइक द सेम इन द रिएक्शन मिक्सचर या इन द प्रोडक्ट फॉर्मेशन या एट द टाइम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन, ठीक है। हमें किससे पहचानना होता है रिएक्शन को? ऑर्डर से, या समटाइम हम कलर का चेंजेस देखते हैं, ठीक है। पीपीटी कैसी बनी भैया? ऑयली लेयर बनी है आपके पास, येलो है, ग्रीनिश है या रेडिश है, ठीक है। तो इन्हीं को हम बोलते हैं टेस्ट। जब भी टेस्ट की बात करेंगे तो हम लिखेंगे स्मेल बेस्ड, ठीक है। अदरवाइज ये क्या देगा? एक सिंपल आपको रिएक्शन दे देगा और कुछ नहीं देगा आपको, ठीक है। चलिए क्या कर ले फिर? कर लीजिए CH3NH2 प्लस CHCl3 प्लस KOH आप ले ही रहे हैं साथ में, ठीक है। तो क्या बनेगा? CH3NC, कार्बिल एमीन बना दिया, ठीक है। प्लस आपको एक KCl दे दिया, प्लस आपको दे दिया भैया H2, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास कार्बिल एमीन टेस्ट हो गया आपका, ठीक है। सिंपल कार्बिल एमीन टेस्ट, ठीक है। स्मेल बेस्ड प्रोडक्ट मिला आपको, ठीक है, जिसको कार्बिल एमीन बोलते हैं, या सिंपल आप कह रहे हैं आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन। और सेम थिंग्स एरोमेटिक एमीन्स आल्सो गिव दिस रिएक्शन, ठीक है। एरोमेटिक एमीन भी देगा। अब एरोमेटिक एमीन्स में आपके पास क्या है? एक एमाइंस है प्रोडक्ट NH2, ठीक, प्लस आपके लगेगा CHCl3 प्लस KOH। नाउ चेक आउट व्हाट इज द रिएक्शन या व्हाट इज द प्रोडक्ट इन दिस मैनर। क्या बनेगा प्रोडक्ट? एमाइंस आपके पास है, आपको फॉर्मेशन कराना है, NC का फॉर्मेशन करवाना है, ठीक है, यानी कि आइसोसाइनाइड आपको बनाना है इन द केस ऑफ दिस pyridine। यहाँ तो ठीक था, RNC लिखा था तो आपने डायरेक्टली CH3NC कर दिया। अगर रिएक्शन बड़ा भी होता CH3CH2NH2 तो आप लिखते CH3CH2NC। सो व्हाट इज द प्रोडक्ट हियर? क्या मिल जाएगा प्रोडक्ट आपको यहाँ इन द केस ऑफ दिस एरोमेटिक अमाइंस के अंदर, ठीक है। आप pyridine यूज कर रहे हैं, सॉरी, बोलिए क्या रिएक्शन बनेगा इसके अंदर? RNS2 या सॉरी C6H5NH2 आपके पास है, ठीक है। यहाँ रिएक्शन क्या बन जाएगा? एनिलीन आपके पास है, ठीक है। प्रोड्यूस द डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। द नंबर इज एनिलीन हियर, ठीक है। एनिलीन है आपके पास, तो क्या करेगा? एनिलीन में क्या बनेगा प्रोडक्ट आपके पास, ठीक है। कुछ नहीं करना, वही रिएक्शन एरोमेटिक है, वही रिएक्शन एलिफेटिक बनेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ भी क्या बनेगा? यहाँ पर C6H5NC बन जाएगा, यहाँ पर RNC था, यहाँ पर ARNC बन जाएगा, ठीक है। ARNC दैट मीन यू हैव NC प्लस KCl प्लस H2। All the reaction product are the same. So this is called your carbylamine test या isocyanide test या carbylamine reaction। क्या होगा? केवल 1 डिग्री एमाइन क्या देगा आपको? रिएक्शन देगा। 2nd डिग्री, 3rd डिग्री एमाइन इस रिएक्शन को नहीं देगा। एंड दैट्स व्हाई दिस इज द रिएक्शन यूज टू सेपरेट 1 डिग्री एमाइन फ्रॉम 2nd डिग्री एंड 3rd डिग्री एमाइंस। अगर 1 डिग्री 2nd डिग्री एमाइंस को मिला दें तो हम लोग इस रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे। अगर 1 डिग्री और 3rd डिग्री को मिला दें तो हम इस रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे टू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री एमाइन फ्रॉम 2 और 3 डिग्री एमाइंस, ठीक है। तो 2 और 3 मिलेगा। 2 और 3 के लिए हम लोग कुछ और टेस्ट की बात करेंगे, ठीक है। नाइट्रस एसिड टेस्ट की बात करेंगे, वो क्या होता है? एंड दिस इज योर कार्बिल एमाइन टेस्ट। सो नोट डाउन कार्बिल एमाइन टेस्ट या आइसो